Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. So far, you have learned how to use a basic for loop. Now it's the time to take it up a notch with a nested for loop, a powerful way to handle a pattern, grids, and more. So without wasting any time, let's get started. So firstly, let's understand the meaning of nested. Nested का simple मतलब क्या है कि statement inside statement, or you can say what I can say nested loop inside a loop. Okay. So what is nested for loop? Putting a for loop inside a for loop. Okay. So nested for loop simply means putting one loop inside another loop, putting one for loop inside another for loop. Now let's understand this with the help of simple example. Suppose ये मेरे पास example है. I am having a for I in the range 3. मैंने एक for loop apply करा है. Range 3 means ये जाएगा 3 minus 1 2 तक 0 1 2. फॉर j इन द रेंज 2 दिस मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 0 एंड 1. इसका सिंपल मतलब क्या है, जो आउटर लूप है द आउटर लूप रन्स फॉर 3 टाइम. फॉर ईच आउटर लूप आइट्रेशन द इनर लूप रन्स 2 टाइम. दैट मीन्स जब मेरा एक टाइम आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा उसके लिए मेरा इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम एज इट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फॉर लूप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल वे. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरा आई का वैल्यू क्या रहेगा लूप वेरिएबल का 0. फॉर 0 इन द रेंज 3. फॉर j इन द रेंज दिस विल बी 0. सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड j. तो क्या मेरा प्रिंट होगा 0 एंड 0 ऑन स्क्रीन. देन अभी मेरा इनर लूप में एलिमेंट है तो इनर लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इनर लूप मेरे को j का क्या मिलेगा 1. फॉर j फॉर i इन द रेंज 2 प्रिंट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ i जो मेरे को आउटर लूप से मिल रहा है 0. j का वैल्यू क्या है 1. ये मेरा इनर लूप एंड होगा. अब मेरा यहाँ पे आउटर लूप में i का वैल्यू क्या आएगा 1. फॉर 1 इन द रेंज 3. फॉर 0 इन द रेंज 2. तो i का वैल्यू क्या है 1. j का क्या है 0. वेयर एज अब मेरा j में अभी एक और वैल्यू है तो दिस विल बी 1 एंड 1. एंड ऑफ माई लूप. आउटर लूप में अब j का i का वैल्यू क्या होगा 2. फॉर 2 इन द रेंज 3. अभी 2 के लिए भी आउटर आइट्रेशन के लिए मेरा प्रोग्राम मेरा j कितने बार रन होगा 2 टाइम 0 एंड 1 टाइम. दैट मीन्स 2 0 2 1. This is the output that I'll be getting with the help of this program. Let's understand this with the implementation. Simply, so first I am having a for loop. For I in the range, let's say I'm saying 3. That means ये चलेगा 0 1 2. For j in the range 2 चलेगा 0 1 and 0 and 1. Okay, so now let's print the value of I and j. Let's run this. You can see what I am getting as my output 0 0 0 1. So the outer loop is running for 3 time, for 0 time, 1 time, 2 time. And जो मेरा inner loop है that is running for 2 time for the each iteration of the outer loop. So for 0 and 1 time you can see 0 time, 1 time. Same goes for second iteration, that is outer loop, that value will be 1. So 2 time I am getting 1 0 1 1 2 0 2 1. I hope this is clear. Let's proceed. Let's say if I am having value 5 over here and value 3 over here. Now my outer loop will execute for 5 times 0 1 2 3 4 and inner loop for 3 times 0 1 2. Okay, that means my outer loop will run for 3 times. Oh, sorry, in this scenario for 5 times. For each outer loop iteration, the inner loop will run for 3 times in this case. Okay, now let's understand this. So you can see the output over here. So this is the output that you are getting using this code. Outer loop is executing for 5 times 0 to 4. Inner loop for 3 times 0 to 2. Let's move forward. Now let's understand real life use case of 2D and matrix, how we can do that. So let's say this is my output that I am looking for, desired output जिसमें मेरे को क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6.
ओके, दिस इज व्हाट आई वांट एज माय आउटपुट। सो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सिंपली सपोज सबसे पहले आई विल बी टेकिंग लिस्ट इनसाइड दैट मैं इन तीनों का एक पेयर कंसीडर करूंगी, 1 and 2 का एक पेयर इनसाइड आ लिस्ट, अदर पेयर हम कंसीडर करेंगे 3 and 4 का, एक और पेयर हम कंसीडर करेंगे 5 and 6 का। सो आई विल बी हैविंग इन टोटल 3 पेयर्स। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे इस कलेक्शन पे। सपोज ये कलेक्शन ए है, इस कलेक्शन पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर लेट्स से आई इन ए। दैट मीन्स मेरा आई का वैल्यू क्या क्या रहेगा? आई में मेरी फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या रहेगी? 1 and 2, सेकेंड आइट्रेशन में 3 and 4, थर्ड आइट्रेशन में 5 and 6। सो मैं आई पे फॉर लूप अप्लाई करूंगी एक और फॉर जे इन आई। For j and I, I'll be printing the value of j. Okay, print j. Okay, this is a simple way of the program that I'm supposed to use. Now let's understand how we'll be implementing this. A basic scenario will remain this only. We are applying a for loop for I and a. तो मेरे पास 3 पेयर रहेंगे 1 2 3 4 5 6, और उस एक एक पेयर पे मैं क्या लगा रही हूँ? एक और फॉर लूप लगा रही हूँ। दैट मीन्स मेरा j का फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा? 1, सेकेंड वैल्यू क्या रहेगा? 2। देन मेरा अगला पेयर फॉर लूप में आएगा 3 and 4, जे का फर्स्ट वैल्यू 3, सेकेंड वैल्यू 4। देन थर्ड पेयर आई में आएगा 5 and 6, जे का फर्स्ट वैल्यू 5, second value will be 6. Now let's understand how I'll be getting output in this format with the help of code. सपोज सेम ही कोड लिखते हैं जो हमने वहाँ पे लिखा है। तो मैंने ये सेम कोड लिख लिया है यहाँ पे, तो जो हमने वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करा था। So you can see over here, this is the code. So हमने क्या करा? जो मेरे को पैटर्न में वैल्यूज चाहिए थी, आई हैव टेकन दैट इन अ लिस्ट फॉर्म, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। मैंने तीनों वैल्यूज को जो मेरे को पेयर में चाहिए थे उनको एक लिस्ट में डाल दिया है। फॉर आई एन ए द वेरी फर्स्ट पेयर विल बी दिस 1 and 2, एंड फॉर जे एन ए द वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी 1 एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 2। एंड मेरा क्या प्रिंट होगा? आई 1 and 2 प्रिंट होगा, सेकेंड आइट्रेशन में 3 and 4, एंड थर्ड आइट्रेशन में 5 and 6। नाउ लेट्स रन दिस and see what we are getting for this code. So you can see I am getting 1 2 3 4 5 6, मीन्स जो मेरे को चाहिए था दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। बट जिस पैटर्न में चाहिए, जिस वे में मेरे को चाहिए, मेरे को 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 मेरे को ये सब चीज़ें 1 and 2 एक लाइन में चाहिए, 3 and 4 एक लाइन में, 5 and 6 एक लाइन में। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, आई विल बी शोइंग यू। जो मेरा j का वैल्यू आ रहा है एक आइट्रेशन के टाइम पे, लेट्स से 1 and 2, वो भी एक डिफरेंट लाइन में आ रहा है, मेरे को वो सेम लाइन में चाहिए। एज पर दिस आई वांट 1 and 2 इन अ सेम लाइन, 3 and 4 in a same line, 5 and 6 in a same line. Now let's make that change in our code. As I know, by default मेरी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। So I'll be ending up over here, end, as I need a space in between. Let's say I am putting a simply by using make use of empty string. Let's run this. So you can see I am getting that in a one straight line, but मेरे को in between space चाहिए 1 and 2 में, 3 and 4 में, 5 and 6 में। So I'll be providing space over here. Let's run this. So you can see over here I'm getting 1 2 3 4 5 6. Still there is something that is missing. मेरे को 1 2 3 4 5 6 ये दोनों मेरे को 3 सेपरेट लाइन्स चाहिए इसके लिए। तो how will be doing that? Let's understand that. फॉर दैट मेरे को एक और प्रिंट ऐड करना पड़ेगा आउटसाइड दिस फॉर लूप। ये इंश्योर करेगा कि प्रिंट हो न्यू लाइन पे आफ्टर ईच वैल्यू ऑफ आई।
मेरा ईच वैल्यू ऑफ आई मतलब पहला पेयर मेरा 1 एंड 2, उसके बाद जो भी वैल्यू प्रिंट हो वो कहाँ पे प्रिंट हो, न्यू लाइन में प्रिंट हो. So let's run this now. So you can see over here I am getting 1 2 3 4 5 and 6. So print at the end ये क्या इंश्योर करता है कि न्यू लाइन में प्रिंट हो आपका डेटा आफ्टर ईच वैल्यू ऑफ आई. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ सिंपल टास्क टू परफॉर्म कि हमको ये एक पैटर्न प्रिंट करना है हमारी स्क्रीन पे जिसमें स्टार्स है. तो इसके लिए हमें सबसे सी द बेस्ट वे टू राइट अ कोड ना, फर्स्टली एनालाइज करें एज पर आर आउटपुट क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड कैसे बना सकते हैं. सो एज पर दिस मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक पैटर्न चाहिए जिसमें स्टार है. तो इसमें सबसे पहले देखो कितनी रोज है मेरे पैटर्न में. मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 वैल्यूज हैं यहाँ पे. राइट, दैट मीन्स मैं कोई भी वेरिएबल लूँ n इज इक्वल टू 5. मेरी लूप कितने टाइम रन होनी चाहिए, मेरी लूप रन होनी चाहिए 5 टाइम. दैट मीन्स मेरे को क्या इंश्योर करना पड़ेगा, फॉर आई इन द रेंज 1 से स्टार्ट हो गए क्योंकि 1 पे यहाँ पे हमें स्टार चाहिए. 1 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक जाए, n+1. दैट मीन्स 5 तक रन होगा. इनसाइड दैट फॉर लूप एक और हम फॉर लूप लगाएंगे जो रन होगी आई टाइम. दैट मीन्स अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू आई का रहेगा 1 इन दिस केस, तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं वहां पे प्रिंट करूंगी स्टार. ओके, कितने टाइम स्टार प्रिंट होगा, जितनी मेरी वैल्यू है आई की. नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस थिंग दैट वी आर सेइंग and see how this is working. So suppose I am taking any variable n, let's say n is equal to 5, and मेरे को for loop लगाना है for I in range start करके 1 से कहाँ तक लेके जाना है, n तक. तो n+1 I suppose to consider. ओके, इसके अंदर for loop लगाएंगे for j in range कहाँ तक लगाना है हमें, I तक. प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है स्क्रीन पे, पैटर्न. पैटर्न में क्या है हमारे पास, स्टार प्रिंट करना है हमें. और हमें वो एक लाइन में चाहिए, मतलब वैल्यूज में हमारा कैसे पैटर्न लेना चाहिए, 1 स्टार, नेक्स्ट लाइन में स्टार स्पेस स्टार, नेक्स्ट लाइन में स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार. दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एंड या एंड बाय स्पेस. एंड न्यू लाइन को इंश्योर करने के लिए मेरे को एक और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. सो या this is a simple code that I supposed to write for printing that pattern. So you can see over here I am getting that pattern on my screen. Now see over here for I in the range starting from 1 to n+1, that means 6. मेरा लूप रन होगा 1 2 3 4 5 टाइम. फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 1. फॉर j इन द रेंज i मीन्स i से स्टार्ट होगा, मेरा फर्स्ट 1 ने स्टार्ट कहाँ से होगा 1 और जाएगा भी कहाँ तक 1 तक. सो प्रिंट स्टार कितने टाइम प्रिंट होगा, मेरा एक टाइम प्रिंट होगा. मेरा एंड हो जाएगा, हम ये प्रिंट क्या इंश्योर करेगा कि मेरा डेटा न्यू लाइन में आए. अभी आई का वैल्यू क्या रहेगा 2. 2 इन द रेंज, किस रेंज में, 1 टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 6. टू आई का वैल्यू कितना है 2. जे का वैल्यू क्या आएगा फॉर जे इन द रेंज. सो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2. रन कितने टाइम होगा मेरा, compute that 2, that means run hoga 0 and 1 time. So that means I'll be having 2 values over here, 2 stars over here, and so on. I hope this is clear. Let's proceed further. Simply remember जो मेरा inner loop है j, वो जितने टाइम रन होगा, कितने टाइम, जितना टाइम मेरा i की जो मेरी i का वैल्यू है, एंड प्रिंट करेगा स्टार. स्टार कैसे प्रिंट होंगे हमारे, जो हमारा j जब एग्जीक्यूट होगा प्रिंट होगा सेम लाइन में सेपरेटेड बाय स्पेस. ओके, रिमेंबर दिस. Now next is print this pattern using a nested loop. You need to print this pattern on the screen, and this is your task that you need to perform. Okay, so the simple hint for you is you will need 2 loops for this, one for rows and one row for the number in each row. Okay, try it out and comment your solution below in comment section. Let me know your solution in comment section below. In case you're finding this series useful, please follow and comment. Thanks for watching.